Hello students, welcome to Study Life. In this video, we are going to talk about the further reactions of preparation of aldehydes ketones and the nomenclature of ketones that is left out from the previous video. We have completed with the nomenclature of aldehydes and carboxylic acids and now we will continue with the nomenclature of ketones. यहाँ से शुरू करेंगे आज का सेशन. उसके पहले कुछ बेसिक चीजें. यस, स्टडी लाइफ पे कुछ खास कोर्सेज, कुछ खास ऑफर्स हैं आपके लिए. सो फुल कोर्स का जो ऑफर है IIT JEE नीट MHT CET सभी कोर्सेज एक साथ में टुगेदर एट 10,000. टेस्ट सीरीज का ऑफर राइट नाउ इज IIT JEE नीट एंड MHT CET 999 and micro course is and that will be having chapter wise things. So micro course में आपकी जो chapter wise arrangement है and that will be at 99. So we can start with micro course आप शुरू कर सकते हैं and then we can look out for further things also. Yes, we are there to help you out here at Study Life. So let's begin with our session of today's lecture. That is, first we'll talk about the nomenclature of ketones, थोड़ा उसका discussion कर लेंगे and then the preparation. So last class में हम लोगों ने methods of preparation के पहले nomenclature जो start किया है, that is aldehydes and carboxylic acids we have completed. एक बार quickly आपको rules याद दिला देते हैं. Aldehydes के लिए क्या था discussion? For aldehydes it was E replaced by Al, E of alkane was replaced by Al, and for carboxylic acid it was E replaced by OIC acid. Then you have carbaldehyde which हमने introduce किया था, that was for aliphatic ring with CHO, that was called as carbaldehyde in aldehydes. अब आज का जो सेशन शुरू होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ध्यान रखने वाली चीजें. इसके अंदर छोटे छोटे कंफ्यूजन वाली चीजें, तो पहले से ध्यान से सुनेंगे और समझ कर लेंगे उसको. दैट इज nomenclature of ketones. Now in the nomenclature of ketones, to begin with, first the nomenclature of ketones. Now the compounds here on the screen, जितने भी आप कंपाउंड्स देखेंगे पहले आप ये चेक कर लो कि कंपाउंड्स के पास उनके आई कार्ड्स हैं क्या. यस, आई कार्ड मतलब क्या, यहाँ पे CO CO CO. यस, तो ये हर जगह आप चेक कर लो कि इनके पास इनके आई कार्ड्स हैं क्या. यस, इनके पास इनके आई कार्ड्स हैं. अब यहाँ पे दो आई कार्ड है, डबल आइडेंटिटी है, CO भी है, CHO भी है. ठीक है, वो नेमिंग के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन the compounds, that is the ketones and their IUPAC and common. शुरू करते हैं. Now first talking about their trivial names. Now in their trivial names or in their common names, these compounds are given the name as alkyl ketone. क्या नाम देते हैं हम लोग इसे? अल्काइल कीटोन. अब ये अल्काइल में कौन सा अल्काइल होगा? अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, ठीक है, यहाँ पे चेक कर लो आप. अगर दोनों ग्रुप सेम है, जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है, so if both the groups are same, then it is called as dimethyl. This is called as dimethyl because methyl is CH3. अब वही मिथाइल ग्रुप दो बार रिपीट हो रहा है, तो अगर मिथाइल ग्रुप दो बार रिपीट होगा तो क्या हो गया? That is dimethyl. So the name of the compound becomes dimethyl and then the suffix, उसका सरनेम क्या? सरनेम कीटोन. So this is called as dimethyl ketone. हाँ, सरनेम याद रखेंगे, कीटोन है इसका. आगे, now this compound is also marketed as acetone. इसी का मार्केट नेम क्या है? Acetone. This is also marketed as acetone. So common name is dimethyl ketone, market name is acetone. Moving on, आगे बढ़ते हैं. Now in the next case, the second compound that you can see on your screen. अब इसके अंदर थोड़ा सा चीजों में ध्यान देंगे. यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर C2H5 है, मतलब CH2 CH3 क्या हो गया? C2H5 हो गया. यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर C2H5 है. So in that case, if it is C2H5, मतलब ये इथाइल ग्रुप हो गया. यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है. अब यहाँ पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे. तो व्हाट इज दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर? तो E पहले आता है, M बाद में आता है. So ethyl and then methyl. So this is ethyl methyl ketone. So the name of the compound is ethyl methyl ketone. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ. अब सिमिलर चीजें थोड़ी बहुत हैं. यहाँ पे भी CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप है. यहाँ पे 3 कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन में. मैंने कहा 3 कार्बन एटम है स्ट्रेट चेन में. अब वो स्ट्रेट चेन इंपॉर्टेंट है.
तो 3 कार्बन एटम है मतलब वो प्रोपाइल ग्रुप हो गया, स्ट्रेट चेन है मतलब वो एन प्रोपाइल हो गया। अब प्रोपाइल में P आता है और मिथाइल में M आता है। तो अब यहाँ से हमारा अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाता है, मिथाइल M कम्स फर्स्ट, प्रोपाइल का P बाद में आएगा, है ना। A से Z में M पहले आएगा, P बाद में आएगा। सो यू हैव टू फॉलो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल। सो दिस इज मिथाइल N प्रोपाइल P2। आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर इन द नेक्स्ट कंपाउंड दोनों साइड चेक कर लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3। तो दोनों साइड सेम ग्रुप अटैच्ड है, CH3 CH2 CH3 CH2। CH3 CH2 कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप। अब इथाइल ग्रुप दोनों साइड रिपीट हो रहा है। जब इथाइल ग्रुप दोनों साइड रिपीट होगा देन इट इज कॉल्ड एज डाई इथाइल एंड द सफिक्स इज कीटोन, सरनेम उसका कीटोन है। सो इट इज डाई इथाइल कीटोन। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी विल कम टू सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। CH3 CHBr CO CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जरा चेक कर लेते हैं। दो फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है मुझे, तो एक CO दिख रहा है कीटोन का, और यहाँ पे Br भी दिख रहा है भाई, हाँ Br भी दिख रहा है। अच्छा, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये CO, इसके बगल वाला कार्बन, इसके बाजू वाला कार्बन, ये हो गया मेरा अल्फा कार्बन, और उस अल्फा कार्बन पर क्या अटैच्ड है बच्चों? उस पर अटैच्ड है Br। सो अल्फा कार्बन पर जब Br अटैच है तब उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा ब्रोमो। अल्फा पे Br अटैच है तो क्या हो गया? अल्फा ब्रोमो। तो ये हो गया अल्फा ब्रोमो। अब लेफ्ट में देखते हैं, लेफ्ट में मुझे तो दो कार्बन नजर आ रहे हैं। ये अल्फा ब्रोमो तो मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे लेफ्ट में दो कार्बन नजर आ रहे हैं। अब दो कार्बन का अल्काइल कौन सा? तो दो कार्बन का अल्काइल है इथाइल। तो दिस इज अल्फा ब्रोमो इथाइल। आगे बढ़ते हैं। अब राइट साइड में मुझे कितने कार्बन दिख रहे हैं? राइट साइड में मुझे 3 कार्बन दिख रहे हैं। अब ये 3 कार्बन के लिए क्या बन जाएगा? एन प्रोपाइल। तो क्या हुआ? अल्फा ब्रोमो इथाइल। तो यहाँ पे देखो ये अल्फा कार्बन है तो ये अल्फा, Br है इसके लिए ब्रोमो, तो अल्फा ब्रोमो। दो कार्बन है इसके लिए इसको हमने लिख दिया इथाइल, दिस इज इथाइल। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव इज, अब राइट साइड में देख लो, 3 कार्बन है इसके लिए एन प्रोपाइल। तो अल्काइल में हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया है। कैसे? इथाइल में ई आता है, प्रोपाइल में पी आता है, तो ई पहले पी बाद में। तो इसके लिए इथाइल पहले प्रोपाइल बाद में। सो अल्फा ब्रोमो इथाइल एन प्रोपाइल एंड देन द सफिक्स इज ऑफ कीटोन, सर ने मैंने बताया पहले कीटोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कंपाउंड यू हैव इज CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH CO CH3। अब ये जो कंपाउंड है, दिस क्लास ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज मेसिटिल ऑक्साइड। इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज मेसिटिल ऑक्साइड। Now let's come to the further examples with the IUPAC names। अब बोलोगे सर ये दोनों तो आपने नहीं बताया। Yes, क्या होता है कि जब कंपाउंड बहुत ज्यादा ब्रांच हो या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो तब उसके कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, और यहीं पर IUPAC का कंसेप्ट स्टार्ट होता है। So when the highly branched structure is there, highly complex structures are there, there possibly you will not have the common names, so you don't write the common names. Now let's talk about the IUPAC names. Okay, I'll just clear this first. Okay, now coming on to the IUPAC names. In the IUPAC name, the rule is very clear to state E of alkane is replaced by ONE. Okay, क्या रूल है बच्चों? E of alkane is replaced by ONE. तो E of alkane को हटा करके वहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? ONE लिखने वाले। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकेंड कार्बन एंड दिस इज थर्ड कार्बन, राइट। सो दिस आर द 3 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, इसके लिए ये प्रोपेन हो जाएगा। अब प्रोपेन में हमने प्रोपेन लिखा है, ई हम नहीं लिख रहे, उस ई के जगह पे हम क्या लिखेंगे? ONE। ई के जगह पे क्या मेंशन करोगे? ONE। अब नाम क्या बन गया इसका? प्रोपेनोन, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोपेनोन। आगे बढ़ते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3। अब इसको नंबरिंग कर लेंगे पहले।
अब नंबरिंग करते समय ध्यान रखो कि C डबल बॉन्ड O जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है उसे लीस्ट नंबर, कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब कम से कम नंबरिंग कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा हूँ, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड दिस इज माई फोर्थ कार्बन। तो these are टोटल 4 कार्बन। अब उल्टा चले जाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ तब हम डिस्कस कर लेंगे। दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड दिस इज माई फोर्थ कार्बन। अब सोच लेते हैं कि मैं रेड कलर वाला नंबरिंग सही है या ब्लू कलर वाला नंबरिंग सही है। हाँ, कौन सा नंबरिंग सही लग रहा है? ऑब्वियसली रेड वाला सही लगेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो तो तुम्हारा सी डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है, जब राइट टू लेफ्ट आओगे तो सी डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे है, जो नहीं चलेगा। तो इसके लिए करेक्ट नंबरिंग कौन सा है? करेक्ट नंबरिंग आपका रेड वाला है। तो इसके लिए इसका नाम हो गया ब्यूटेन ओन। अब इसे लिख सकते हो ब्यूटेन 2 ओन भी लिख सकते हो, दोनों भी करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलोगे सर यहाँ क्यों नहीं लिखा है? तो इसके लिए यहाँ नहीं लिखा क्योंकि हम लोग ये वाला नंबरिंग करते ही नहीं है, राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे ही नहीं ना। राइट टू लेफ्ट क्यों नंबरिंग करोगे? क्योंकि तुम्हें तो लोवेस्ट नंबर चाहिए। चलो और एक एग्जाम्पल तुमको लिख के दिखा देता हूँ। अगर सपोज तुम्हारे पास स्ट्रक्चर ऐसा है CS3 CH2, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन है, ध्यान से देखो क्या मॉडिफिकेशन, C डबल बॉन्ड O और आगे चल के C। अब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ब्यूटेन 2 ओन क्यों नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी तुमने रेड वाला मार्किंग कर लिया है और ये रेड वाला मार्किंग सही भी है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे? अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं तो ये मेरा फर्स्ट कार्बन है, ये मेरा सेकेंड कार्बन, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। लेफ्ट टू राइट जाऊं तो ये फर्स्ट है, सेकेंड है, ये थर्ड है, नहीं चलेगा। मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं या राइट टू लेफ्ट जाऊं स्ट्रक्चर पे, तो सेकेंड पोजीशन पे ही सी डबल बॉन्ड हो आ रहा है, यहाँ पर भी सेकेंड पोजीशन पे ही सी डबल बॉन्ड हो आ रहा है। इसी के लिए दोनों जगह पर सेकेंड पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड हो आ रहा है, इसी के लिए इसको मैंने खाली ब्यूटेन नॉन लिखा है, ब्यूटेन 2 ओन लिखने की जरूरत नहीं। लिखा है तो भी करेक्ट है, बट मेक्स नो डिफरेंस एज सच। ऑलराइट, सो दिस इज द बेसिक आइडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज, लेफ्ट टू राइट। अच्छा, नंबरिंग कर लेते पहले। ये तो लॉन्गेस्ट चेन है मेरा। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करना है कि राइट टू लेफ्ट करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लो। सी डबल बॉन्ड तो नजदीक चाहिए ना तुम्हें, कहाँ से मिलेगा नजदीक? लेफ्ट से नजदीक मिलेगा। दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन, ठीक है। अब सोचते हैं कि भाई नंबरिंग का काम तो हो गया, अब 5 कार्बन है, 5 कार्बन। 5 कार्बन का अल्केन कौन सा? यस, 5 कार्बन का अल्केन तो पेंटेन होता है, तो पेंटेन। अब ई नहीं लिखा है मैंने, ई की जगह पर उसका नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग क्या है? तो सेकेंड पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड हो है। सी डबल बॉन्ड कहाँ पर है? सेकेंड पोजीशन पे। सो पेंटेन और फिर सेकेंड पोजीशन का 2 और बाद में सफिक्स। क्या सफिक्स है? ONE। तो बहुत आसान हो गया। तो क्या नाम हो गया इसका? पेंटेन 2 ONE। दिस इज कॉल्ड एज पेंटेन 2 ONE। आगे चलते हैं। नाउ हियर इन द नेक्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे भी तो 5 कार्बन है, ऊपर भी 5 कार्बन था। फिर फर्क क्या है? फर्क है कुछ। फर्क ये है कि डबल बॉन्ड, देखो सी डबल बॉन्ड O कहाँ पर है? तो सी डबल बॉन्ड O, CO जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, वो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था, यहाँ पे वो थर्ड पोजीशन पे। अच्छा ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, उसको रिवर्स ऑर्डर में भी चेक कर लो। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो आइदर यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और यू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सी डबल बॉन्ड तो थर्ड पे ही आ रहा है, मतलब इसका नंबरिंग होगा पेंटेन 3 ओन। सो 5 कार्बन इसके लिए पेंटेन, सी डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पे इसके लिए 3 और सफिक्स में आएगा ONE। तो क्या नाम बन गया इसका? पेंटेन 3 ओन। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज पेंटेन 3 ओन। नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वाले कंपाउंड में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देख लो, ये फर्स्ट कार्बन है तुम्हारे पास, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। क्या सोच के इसको थर्ड लिया पहले वो समझ लो। ये नंबरिंग लेफ्ट टू राइट क्यों जा रहा है मेरा? क्योंकि ये थर्ड पोजीशन यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O को मिल रहा है। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊं तो यहाँ पे ये फर्स्ट है,
ये सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है। ध्यान दो, ये फोर्थ है, नहीं चलेगा, मुझे लोएस्ट नंबर चाहिए। तो लोएस्ट नंबर मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, राइट। सो व्हाट शुड आई हैव, 3 हियर, सो आई विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट जाते समय कुछ और भी काम बन गया मेरा, सेकेंड पोजीशन पे Br आ गया। सो नाउ दिस इज 2, अब नंबरिंग देखो, 2 ब्रोमो, हमेशा हैलोजन हमेशा प्रीफिक्स में आता है, ये हमेशा याद रखना, हैलोजन कभी भी सफिक्स में नहीं यूज होता, हैलोजन हमेशा प्रीफिक्स में ही यूज होता है। तो ये हो गया 2 ब्रोमो। अब यहाँ पर कितने कार्बन है गिन लेते हैं, तो 1 2 3 तो नंबर कर दिया था मैंने, 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। अब 6 कार्बन मतलब क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। अब थर्ड पोजीशन पे ONE, क्यों थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे 3 पे CO है, तो नाम क्या हो गया इसका, 2 ब्रोमो हेक्सेन 3 ONE। आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा चीजें और गहराई में जाते हुए, डिटेल्स में जाते हुए, ये 2 को मैंने कट कर दिया, मैं यहाँ पे ब्रांच में CS3 लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। यहाँ पे CS3 2 टाइम्स था, मैंने बहुत आसानी से ये 2 को कट करके CS3 को मैंने ब्रांच आउट कर दिया है। अब जब ये CS3 को मैंने ब्रांच आउट कर दिया है, अब इसका नंबरिंग देखते हैं, कहाँ से शुरू करोगे। अब इफ यू आर नंबरिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5, मतलब अगर मैं राइट टू लेफ्ट करूँ तो ये मेरा सेकंड पोजीशन पे आएगा, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ और ये राइट। बट इफ आई गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन व्हाट, देन दिस इज फर्स्ट, सेकंड पे ब्रांच आएगा, थर्ड फोर्थ पे CO आएगा। बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ कर लेते हैं, उनके दिमाग में क्या चलता है, सर यहाँ पे ब्रांच जल्दी आ गया, यहाँ पे तो ब्रांच आएगी, लेकिन हमें पहला प्रेफरेंस देना है फंक्शनल ग्रुप को, बाद में प्रेफरेंस देना है ब्रांच। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O है, so this will be your preference. So your numbering is first carbon, second carbon, third carbon, fourth carbon and fifth carbon. So let's begin here. This is 4, this is 4 methyl, ब्रांच में क्या है बच्चों, ब्रांच में CS3 है, so 4 methyl। अब यहाँ पे 5 कार्बन है, इसके लिए पेंट 3En, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, सो पेंट 3En, और सेकंड पोजीशन पे CO है, सो 2ONe। सो क्या नाम बन गया इसका, 4 methyl पेंट 3En 2ONe। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज 4 methyl पेंट 3En 2ONe। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल्स में बढ़ते हैं इसके आगे। द नेक्स्ट वन CS3 CO CH2 CO CH2 CH3। अच्छा, यहाँ पे CO 2 बार रिपीट हो गया, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब फिर से दिमाग में डाउट आएगा कि यहाँ से फर्स्ट सेकंड क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से अगर फर्स्ट सेकंड करते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे तुम्हें CO मिलता, यहाँ पे CO कहाँ मिला है, यहाँ पे CO सेकंड पे मिला है, ठीक है ना, यहाँ पे CO सेकंड पे है, यहाँ पर CO थर्ड पे है, so that is more preferable. So going from left to right is more preferable. अब 6 कार्बन है टोटल। यहाँ पे मुद्दे की बात है कि CO वाला ग्रुप रिपीट हो रहा है, पहले के भी एग्जांपल्स में बताया है कि अगर सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है तो E वाला सफिक्स नहीं हटाना है। सेम फंक्शनल ग्रुप अगर रिपीट होता है तो E वाला सफिक्स नहीं हटाना है। तो अब नाम क्या बन जाएगा उसका, उसका नाम बन जाएगा हेक्सेन, E रखा है मैंने। अब पोजीशन की बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे फोर्थ, जहाँ पे CO है, तो हेक्सेन 2,4। अब 2 बार है, जिसके लिए प्रीफिक्स आएगा डाई, और कीटोन खानदान है, कीटोन फैमिली है, तो इसके लिए सफिक्स आएगा O। तो नाम क्या बन गया, हेक्सेन 2,4 डाई O। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स गो टू द लास्ट वन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन आल्सो। अब यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, तो एक CO है और एक CHO है।
यहाँ पर CHO is always given preference than CO. So this is your first carbon, second carbon, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन. ये प्रायोरिटी ऑर्डर से आता है. साफ साफ बता दिया मैंने, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है. Aldehydes will be given more priority than ketones when you are numbering for IUPAC nomenclature. जब आप IUPAC nomenclature के लिए नंबरिंग करते हैं उस समय पर aldehydes का प्रेफरेंस पहले दिया जाता है कीटोन्स के कंपैरिजन में. तो यहाँ पे ये फर्स्ट प्रेफरेंस हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड नाउ दिस थर्ड पोजीशन इज CO. अब जो लीस्ट प्रेफर्ड होता है, ध्यान से सुनना है इसमें, जो लीस्ट प्रेफर्ड होता है जिसको हम सेकेंड प्रेफरेंस देते हैं वो हमेशा प्रेफिक्स लिखा जाता है. जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं वो सफिक्स, जिसको सेकेंड प्रेफरेंस देते हैं वो प्रीफिक्स. अब यहाँ पर CO तुम्हारा प्रीफिक्स है, ऊपर से लेके यहाँ तक तुम्हारा CO सफिक्स था, तो तुम हर जगह ONE लिख रहे थे. अब यहाँ ONE नहीं लिख सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO क्या है तुम्हारा, CO यहाँ पर तुम्हारा प्रीफिक्स है. और जब CO प्रीफिक्स में आता है then you are using the word oxo. This is oxo. So the name of the compound becomes 3-oxo. First preference, then this is second, this is third. So this is 3-oxo. CO के लिए क्या लिखा वर्ड? oxo. 4 कार्बन है, इसके लिए ब्यूटेन और E की जगह पर Al, तो बन गया ब्यूटेनल. So name of the compound is 3-oxo-butanol. So here the name of the compound becomes 3-oxo-butanol. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर की तरफ. C6H6C डबल बॉन्ड O. दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द फिनॉन ग्रुप. अब यहाँ पे देखो 2 बेंजीन रिंग है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O. दिस इज कीटोन. तो ये 2 बेंजीन, इसको डाइफिनाइल बोलते हैं. बेंजीन रिंग के साथ में एक ब्रांच, बेंजीन रिंग के साथ में एक ब्रांच. तो बेंजीन रिंग के साथ जब वो ब्रांच बाहर आ जाता है, बेंजीन रिंग को फीन बोलते हैं. फीन, PHEN, फीन. अब जब वो एक ब्रांच बाहर आता है मतलब एक H कम हो जाता है. जब अल्केन से एक H कम होता है तब वो अल्काइल. वैसे ही जब फीन से एक H कम होता है तब फिनाइल. तो यहाँ पे ये भी फिनाइल है, देखो यहाँ पर ये भी फिनाइल है, ये भी फिनाइल है. तो 2 फिनाइल हो गए. अब 2 फिनाइल हो गए, इसके लिए क्या लिखोगे? डाई फिनाइल. और सरनेम तो पता ही है, सरनेम क्या है इसका? कीटोन. तो दिस बिकम्स डाई फिनाइल कीटोन. और इसी को IUPAC नेम में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेंजोफेनॉन. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोफेनॉन. नेक्स्ट वन. अब यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग है, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे C है, कुछ नहीं है, नहीं यहाँ पर C है. सो C डबल बॉन्ड O CH3. अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो वापस वही स्टोरी कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ पर CH3 है, मतलब ये मेथाइल है. यहाँ पर बेंजीन के साथ एक बॉन्ड बाहर निकला हुआ है, मतलब ये फिनाइल है. मतलब यहाँ पे ये मेथाइल हो गया, ये फिनाइल हो गया, और ये CO तो अपना कीटोन सरनेम है. ये क्या नाम बन गया? मेथाइल फिनाइल कीटोन. तो इसको एक बार एनोटेट करके स्क्रीन पे आपको क्लियर कर देते हैं, तो और थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हो जाएगा. ये मेथाइल है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बॉन्ड बाहर निकला हुआ वो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ. तो ये हो गया मेथाइल, ये हो गया फिनाइल, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O है, ये हो गया कीटोन. तो नाम क्या बन गया इसका? मेथाइल फिनाइल कीटोन. दिस इज कॉल्ड एज मेथाइल फिनाइल कीटोन. अब इसी को IUPAC नेम में क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज एसिटोफेनॉन. दिस इज कॉल्ड एज एसिटोफेनॉन. द लास्ट वन, this is your benzene, not benzene ring, sorry, this is not benzene, this is a cyclohexane. डबल बॉन्ड नहीं है, alternate सिंगल एंड डबल बॉन्ड नहीं है. तो this is cyclohexane. यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, मतलब हेक्सेनॉन. यहाँ पे Cl अटैच्ड है और यहाँ पर एक ब्रांच है. अब ध्यान से समझ लो, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा प्रेफरेंस ऑर्डर में, ये सेकंड हो जाएगा और ये फोर्थ हो जाएगा. तो उसके बेसिस पे, बिकॉज ये थर्ड है, सो ये सेकंड पोजीशन पे Cl है, तो पहले लिख दिया 2 क्लोरो. अब चौथे पोजीशन पे एक ब्रांच नीचे दिख रहा है, वो CH3 ग्रुप है, टर्मिनल.
तो CH3 है, तो 2 क्लोरो 4 मेथाइल, और बाकी क्या बचा है, तो साइक्लोहेक्सेन के साथ डबल बॉन्ड O है, तो साइक्लोहेक्सेन और E is replaced by ONE, so it becomes cyclohexanone. So this results into the formation of what is called as cyclohexanone. Okay, so this is the formation of cyclohexanone. Moving on to the next one, this was cyclohexanone that we did just now. Yeah, now this is polysubstituted aromatic aldehydes and carboxylic acids. The higher priority order is considered as functional group is given. This how the functional group is given that you have to understand. अब functional group कैसे दिया है वो ध्यान से देखेंगे. अब यहाँ पर बेंजीन रिंग है आपके पास, ये CHO, ये CH3 और ये OH. Now, according to this, this is your first position. So benzene ring with CHO is your first position. According to this, this will be your fourth position, para position. अब ये क्या हो गया, 4 hydroxy, चौथे position पे. So here you have to number it. How will you give the numbers? So for giving the numbers, it will be something like this. This is your first position. This is your second position. This is your third position, and this is your fourth position. So first position यहाँ है, fourth position यहाँ है. So this is 4 hydroxy. Third position पे CH3 है. So this is 3 methyl, and benzene ring के साथ CHO है. इसके लिए parent compound क्या कहलाएगा? Parent compound is benzaldehyde. So the name of the compound is, again I'll repeat this, 4 hydroxy 3 methyl benzaldehyde. So that is how you give the name to this compound, 4 hydroxy 3 methyl benzaldehyde. The next one. Yeah, before this, one by one. Okay, now this compound here, again let's go with the order. This is again here the first one, COOH. So when I give this here as a number, this is first one, COOH. This is second one, this is third, and this is. अब यहाँ पे थर्ड पे OH, यहाँ पे भी प्रायोरिटी ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग, ये ध्यान समझ लो इसको ध्यान से. प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे दे रहे हैं, यहाँ पे COOH है एक फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे OH है ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप. तो अब COOH से नंबरिंग स्टार्ट करें या OH से स्टार्ट करें, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर है, और वो प्रायोरिटी ऑर्डर किसके लिए है, COOH. तो दिस इज हियर COOH के लिए प्रायोरिटी है, इसके लिए नंबर 1, यहाँ पे ये नंबर 3. अब नाम कैसे दोगे, सो 3 हाइड्रोक्सी, थर्ड पोजीशन पे OH है, सो 3 हाइड्रोक्सी. फोर्थ पोजीशन पे CH3 है, सो 4 methyl, and then you have benzoic acid. So 3 hydroxy 4 methyl benzoic acid. Yeah. Now we'll move to the next example. One more example here. Now this is benzene ring with CHO and COH. अब यहाँ पे ये और भी इंटरेस्टिंग चीज है और एक नया सीखने वाली बात है. क्या सीखने वाली बात है, COOH यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, प्रेफरेंस ऑर्डर उसका पहले है, और CHO का प्रेफरेंस ऑर्डर सेकंड है. अब ध्यान से समझ लो, अभी तक CHO को कभी भी तुमने सेकंड प्रेफरेंस ऑर्डर में नहीं देखा था, हमेशा तुम E हटा देते थे, AL लिख देते थे. यहाँ नहीं करोगे, यहाँ CHO तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं है, तो यहाँ पे CHO तुम्हारा सेकंड प्रेफरेंस है. कहने का मतलब यहाँ पे CHO जब सेकंड प्रेफरेंस है तो यू हैव टू टेक इट एज अ प्रेफिक्स. अब CHO जब प्रेफिक्स में आता है देन यू कॉल इट एज फॉर्मिल. ये वर्ड याद रखेंगे हम लोग, फॉर्मिल. So this is called as formyl. This is your first carbon, this is your second carbon. So 2 formyl and benzene ring के साथ COOH, that is called as benzoic acid. So 2 formyl benzoic acid. So this is how the name comes, 2 formyl benzoic acid. Okay, now in this 2 formyl benzoic acid was the last structure. Now we will be discussing the further part of the methods of preparations of various compounds, that is aldehydes, ketones and carboxylic acids, in our upcoming videos. Stay tuned with Study Life. Today I hope you have enjoyed with this nomenclature of ketones, and be tuned with Study Life for more such videos, more such sessions, and keep on learning. This process has to continue.